ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص، آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیل چل رہی تھی کہ آپ اللہ کی قدرت سے فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 30 سال کی تھی تو ایک واقعہ رونما ہوا۔ 2 آدمی لڑائی کر رہے تھے، آپ نے مدد کرنا چاہی۔ جو ظلم کر رہا تھا اس کو ایک مکہ مارا، وہ بندہ مر گیا۔ فرعون کے درباریوں نے آپ کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ کر دیا۔ آپ کے ایک دوست نے آپ کو اطلاع دی اور آپ نے مصر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس حالت میں آپ وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف چلے۔ مدین یہ ایک شہر تھا جو علاقہ تھا ملک شام کا، مصر کی حدود سے باہر تھا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت اماں سارہ علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دوسری شادی حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری شادی ہے، اس میں اور بھی بھائی ہیں، ان میں ایک بھائی کا نام، ایک بیٹے کا نام تھا مدین۔ انہی کی اولاد آگے چلتی ہوئی جہاں آباد ہوئی تو اپنے باپ دادا کے نام پر انہوں نے اس بستی کا نام رکھا مدین۔ یہی وہ بستی ہے جہاں پر اللہ کے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ ارشاد فرمائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کا راستہ نہیں جانتے تھے، نہ کوئی رہبر ساتھ تھا اور نہ ہی کوئی زیادہ راہ تھا۔ کھانے پینے کا سامان، سفر کا کچھ بھی پاس نہیں۔ اچانک نکلے، یہ پتا ہے کہ میں نے مدین جانا ہے، لیکن نہ راستہ معلوم، نہ رہبر ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور مدین سے، مصر سے لے کر مدین کا سفر 8 دن کا تھا۔ ان 8 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی مصر سے نکلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ذکر پچھلے سبق کے اندر گزر چکا۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے بچاؤ فرما دیا۔ اب جب مدین کے راستے پر چل پڑے، اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے
کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر چلا دے گا اور میں مدین پہنچوں گا۔ 8 دن کا جو سفر تھا وہ آپ کو 10 دن لگے طے کرنے میں، اور اس قدر پرکٹن سفر تھا کہ آپ کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے۔ کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، آپ نے اس سفر کے دوران درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، کہیں گھاس پھوس کے کوئی تنکے وہ آپ نے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں 10 دن کے پرکٹن سفر کے بعد آپ مدین پہنچتے ہیں۔ مدین میں جیسے ہی آپ کی انٹری ہوئی تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور بہت سے لوگ وہاں سے پانی نکال کر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے 2 لڑکیاں 2 خاتون کھڑی ہیں، اپنی بکریوں کو بار بار کنٹرول کر رہی ہیں، روک رہی ہیں۔ بکریوں کو پیاس لگی ہے، وہ پانی پینا چاہتی ہیں لیکن وہ روک رہی۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ان سے جا کر پوچھا کہ آپ کا کیا ماجرا ہے، آپ اب بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مرد یہاں پر ہیں ہم اس وقت تک آگے بڑھ کے بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، جب یہ یہاں سے چلے جائیں گے اس کے بعد پھر ہم پانی پلائیں گے۔ اور پھر یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ عورت تو شرم و حیا والی تو گھر میں رہنا چاہیے تھا، کوئی مرد آ کر بکریوں کو پانی پلا لیتا۔ انہوں نے وہیں پر جواب دے دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والد محترم وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ہمیں آنا پڑا اور ہم نے اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آیا اور آپ نے آگے بڑھ کر لوگوں کو سائڈ کیا اور پہلے ان کی بکریوں کو پانی پلوا دیا، اور وہ اسی وقت گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا اب پہلے تم روزانہ لیٹ آتی ہو اور آج اتنی جلدی فارغ ہو کر آ گئی۔ انہوں نے واقعہ بتا دیا کہ ایسے ایک مسافر تھا، اس نے ہم سے پوچھا اور پوچھنے کے بعد اس نے ہماری بکریوں کو جلدی سے پانی پلا دیا، اور اس کے بعد پھر وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے وہاں پر بیٹھ گیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ آپ نے ایک بیٹی کو فرمایا کہ بیٹا آپ جا کر اس مسافر کو بلا کر لے آؤ، تاکہ وہ مسافر ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی، کوئی مہمان نوازی کی ضرورت ہوگی، ہم اس کے ساتھ کچھ تعاون کر سکیں۔ تو یہ ایک بیٹی گئی اور یہ جا کر ان کو بلا کر لے آئی، اور جا کر ان کو کہا کہ مجھے والد صاحب نے بھیجا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے آج ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وہ اس کا آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ آپ جو بھی خیر میری طرف نازل فرمائیں گے میں اس وقت محتاج ہوں۔ علماء اکرام مفسرین فرماتے ہیں یہاں خیر سے مراد ہے کھانا، جو بھی کھانا مجھے اس وقت آپ دیں گے اپنی طرف سے مجھے ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، کیونکہ 10 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ نے انتظام فرما دیا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا تھے، ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا کہ مصر سے میرے آنے کی یہ وجہ بنی اور اس وجہ سے مجھے مصر سے یہاں تک سفر کرنا پڑا۔ انہوں نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اور یہاں آپ مصر کی حدود سے باہر نکل آئیں، فرعون کا کنٹرول نہیں ہے یہاں پر۔
अब जो बेटी बुलाकर लेकर आई थी उसने वालिद साहब से एक दरख्वास्त की कि अब्बू जी, हमें घर के अंदर एक मुलाजिम की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम इनको मुलाजिम ही रख लें। और मुलाजिम के लिए दो चीज़ें मेन होती हैं कि वो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी हो, और ये दोनों चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। वो वाक़या भी बयान कर दिया। ताकतवर कहाँ से पता चला कि जब कुएं से पानी पिलाया, बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस कुएं पर खड़े थे वहाँ पर लोग पानी पिला रहे थे। आपने उनसे पूछा कोई और कुआं है? उन्होंने कहा साथ में कुआं है, लेकिन वहाँ पे भारी पत्थर रख के उसको बंद कर दिया गया, और 10 से ज़्यादा आदमी जब उस पत्थर को पीछे हटाते हैं तो फिर उस कुएं का मुंह खुलता है। आप वहाँ ले गए उनको और वहाँ बकरियों को पानी पिला दिया। एक कौल ये है मुफस्सिरीन इकराम का, और एक कौल ये है कि वहीं से लोगों को साइड किया और वहीं से जो उनको पानी पिला दिया, और यहाँ से जब उन्होंने पानी को निकाला बाहर, तो जो 10 आदमी उसको खींचते थे पानी को बाहर, जो पानी का बंडल था उसको बाहर निकालने के लिए इतने ताकतवर आदमी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले निकाल लिया। यहाँ से पता चला कि ये एक ताकतवर इंसान है। इसलिए मजदूर और मुलाजिम होने के लिए ताकतवर होना ज़रूरी है कि ताकि सही माना में काम कर सकें। और दूसरा, अमानतदार होना ज़रूरी है कि घर के अंदर हर बंदे को नहीं रखा जा सकता, मुलाजिम हर बंदे को नहीं रखा जा सकता, अमानतदार होना ज़रूरी है। अमानतदारी कहाँ से पता चली कि जब ये खातून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चलकर अल्लाह के नबी बनने वाले थे। तो नबी जो होता है उसको अल्लाह ताला इब्तिदा ही से शर्म हया की वो दौलत, वो नेमतें अता फरमाते हैं जो बाकी दुनिया वालों के पास नहीं होती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके साथ चलने लगे तो आपने फरमाया कि आप मेरे पीछे पीछे रहें, मैं आगे चलता हूँ, और आप अपने हाथ के अंदर कुछ कंकरियां पकड़ लें, जिस तरफ मुड़ना हो आप उस तरफ कंकरी फेंक दें, उस तरफ को मैं मुड़ जाऊंगा और ऐसे आपके घर पहुंच जाएंगे। ताकि खातून मेरे आगे आगे ना चले, मैं आगे चलूं और खातून के ऊपर मेरी नजर ना पड़े। तो यहां से उसने अंदाजा लगाया कि ये एक अमानतदार बंदा भी है। अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनके साथ बातचीत की कि वाक़तन इनको मजदूर और मुलाजिम बनाकर रख लेना चाहिए, क्योंकि पीछे से ये एक मुसाफिर परेशान भी हैं, इनके लिए सहारा भी बन जाएगा। अब घर में कोई और मर्द है नहीं, 2 लड़कियां हैं और साथ में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नाबीना है। अब फैसला ये किया गया कि इन दोनों लड़कियों में से एक की शादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दी जाए, ताकि घर के अंदर ये एक घर के फर्द बनकर रह जाएंगे, परेशानी नहीं होगी किसी किस्म। चुनांचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे बातचीत की कि आप एक लड़की की शादी में आपके साथ करना चाहता हूँ, और उसमें हक महर ये होगा, शर्त ये होगी कि आप 8 साल तक हमारे यहाँ बकरियां चराएंगे, और अगर आप 10 साल पूरे कर लेंगे तो ये आपकी तरफ से होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह शर्त कबूल फरमा ली और फरमाया कि मुझे इख्तियार होगा कि मैं दोनों में से जौन सी भी मुद्दत पूरी कर लूँ, 8 साल पूरा कर लूँ तब मेरी मर्जी, 10 साल पूरा कर लूँ तब मेरी मर्जी, आप मेरे ऊपर कोई दारोगीर नहीं फरमाएंगे। फरमाया ठीक है। तो आपने 10 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास रहे और यहाँ पर आपने इनकी बकरियां चराई। अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे हैं कि जिन्होंने बकरियां चराई, यहाँ तक कि सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई हैं। इसलिए बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बकरियों का चराना ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत में से भी है। वलम्मा तवज्जह तिल्क़ा मदयन, वलम्मा और जब, तवज्जह मुतवज्जह हुए, रुख किया, तिल्क़ा मदयन मदयन की सीध पर, मदयन के रास्ते पर, क़ाला अर्ज किया, आसा रब्बी उम्मीद है कि मेरा रब, अन यहदियनी मुझे ले जाएगा, सवा अस्सबील सीधे रास्ते पर, अल्लाह से उम्मीद है कि मुझे सीधे रास्ते पर ले जाएगा।
اور اللہ ताला ने रहनुमाई फरमाई और आप सीधे रास्ते पे चलते रहे। वलम्मा और जब वारादा पहुँचे मा मदियना मदियन के पानी पर से मुराद कि मदियन के दाखिल होने के बाद वहाँ पे पानी के कुआं आया, वहाँ पर पहुँचे। वजदा पाया अलैहि उसके पास उम्मतन एक जमात को मिनन्नासी लोगों में से, उस कुएं के पास लोगों की एक जमात को पाया। वो क्या कर रहे थे? यस्कून वो पानी पिलाते हुए। ववजदा और पाया मिन दूनिहिम उनके पीछे इम्राअतैनी दो औरतों को तजूदान वो अपनी बकरियों को रोके हुए खड़ी थी, वो बकरियों को रोक कर खड़ी थी। काला आपने पूछा माँ खतबुकुमा तुम्हारी क्या हालत है, क्यों बकरियों को रोक कर खड़ी हो, बकरियां प्यासी हैं, पानी पिलाओ आगे बढ़ के। कालता वो कहने लगी ला नस्की नहीं हम पिलाएंगे बकरियों को पानी, हत्ता यहाँ तक के युस्दिरा इसका माना है फेर लें बकरियों को, और रियाउ चरवाहे, ये बाकी जो चरवाहे हैं ये अपनी बकरियों को पानी पिलाकर यहाँ से फेर लेंगे, यहाँ से हट जाएंगे, तो फिर हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। व अबूना और हमारे वालिद शैखुन बूढ़े हैं, कबीरुन बड़ी उम्र के हैं, बुढ़ापा भी है, कमजोरी भी है और उम्र भी ज्यादा है। आपने क्या किया? फसक़ालहुमा पानी पिला दिया उन दोनों की बकरियों को। सुम्मा फिर तवल्ला हट गए, इला ज़िल्ली एक साये की तरफ। अक्सर मुफस्सिरीन का कौल ये है कि ये साया दरख्त का था, आप उस दरख्त के साये के नीचे जाकर बैठ गए, जबकि बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो साया किसी पहाड़ की ओट का था, आप वहां पर जाकर बैठ गए। फ़क़ाला यहाँ पे आपने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ए मेरे अल्लाह बेशक जो भी चीज़ अनज़लता तू उतारेगा, इलैया मेरे पास, मिन खैरिन भलाई की, फ़क़ीरुन मैं मोहताज हूँ, जो भी भलाई की चीज़, जो भी खैर की चीज़ आप मेरे पास उतारेंगे, मुझे देंगे, मैं इस वक्त उसका मोहताज हूँ। ये आयत मुबारका का हिस्सा, इसको अपने जहनों में बिठा लीजिए और इसके ऊपर निशान लगा लीजिए। ये आयत मुबारका का हिस्सा जिस वक़्त भी परेशान हो, आप यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परेशानी का अंदाज़ा लगाएं कि उनके पास इस वक़्त कोई घर नहीं है, वो मुसाफिर हैं, खाने पीने का सामान भी नहीं है, कोई आसरा नहीं है, बिल्कुल तने तनहा हैं, और इस हालत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो ये वाली दुआ, जो भी परेशानी का मौका आ जाए, इंसान को ये महसूस हो कि अब मैं तन्हा हो गया हूँ, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे सहारा चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी के पास औलाद नहीं है और वो औलाद का सहारा चाहते हैं, वो ये दुआ पढ़ा करें। अगर किसी के पास रिज़्क़ नहीं है और वो रिज़्क़ का सहारा चाहते हैं, ये दुआ पढ़ा करें। अल्लाह को बताएं कि अल्लाह मैं इस वक्त मोहताज हूं, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है, आप जो भी मुझे सहारा देंगे मैं इस वक्त मोहताज हूं। अल्लाह को नीयत का पता है कि ये बंदा इस वक्त किस चीज़ का सहारा चाहता है। औलाद का सहारा चाहोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो अता फरमाएंगे। अगर आप कारोबार का सहारा मांगोगे, अल्लाह वो अता फरमाएंगे। रिज़्क़ की तंगी दूर करवाने का मांगोगे, अल्लाह वो अता फरमाएंगे। जो भी किसी जगह पे इंसान फंस जाए और अकेला तन्हाई महसूस करे कि आप पता नहीं क्या बनेगा मेरा, उस मौके पर ये दुआ पढ़ा करें तो ये फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके पढ़ने का तरीका ये होगा, अव्वल आखिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए और 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ा जाए, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये अल्फाज हैं दुआ के। फ़जाअतहु, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साए में बैठ गए, तो वो लड़कियां घर चली गईं, जाकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को वाक़या बता दिया
कि आज हम इसलिए जल्दी पानी पिला कर आ गए। तो आपने उनको भेजा एक बेटी को कि जाओ उनको जाकर बुला लो। फजाअतहु, फिर आई उनके पास, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, तमशी, चलती हुई, अलस्तिहयाई, शर्म के साथ। औरत के अंदर, मर्द के अंदर भी शर्म और हया होती है, लेकिन औरत के अंदर शर्म और हया भरपूर तरीके से। उस जमाने में अगरचे पर्दे का हुक्म नहीं था, लेकिन शर्म और हया थी। फजाअतहु इहदाहुमा, आ गई उनके पास उन दोनों में से एक, तमशी, चलती हुई, अलस्तिहयाई, शर्म और हया के साथ। क़ालत, कहने लगी, इन्न अबी, बेशक मेरा बाप, यदऊका, वो आपको बुला रहे हैं, मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं, लियज्जियका, ताकि वो आपको बदला दे आपको, अजरा मा सक़ीत लना, अजर का उस चीज में जो तूने पानी पिलाया हमारे बकरियों को, वो आपको उसका बदला देना चाहते हैं, इसलिए वो आपको बुला रहे हैं। आप तशरीफ ले गए और वहां जाकर आपने, फलम्मा जाअहु, फिर जब पहुंचे उनके पास, वक़स्सा अलैहिल क़सस, और बयान कर दिया उनके सामने पूरा किस्सा, अहवाल सारे बयान कर दिए। काला, उन्होंने तसल्ली दी, ला तखफ, डरो मत, नजौता मिनल कौम ज़ालिमीन, आप निजात पा गए हैं जालिम कौम से, आप जालिम कौम से निजात पा गए हैं, इसलिए आपको परेशानी नहीं, आप उस कौम की हदूद से बाहर निकल आए। क़ालत इहदाहुमा, कहने लगी इहदाहुमा, उन दोनों में से एक लड़की, या अबती, ए मेरे बाप, इस्ताजिर हो, इसको नौकर बना लिया जाए, इसको घर में मुलाजिम बना लिया जाए। इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, बेशक बेहतरीन नौकर वो होता है, अल कवियुल अमीन, जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी हो। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में 3 शख्सियात ऐसी गुजरी हैं कि जिनके जहानत और फतानत पर रश्क आता है। उनमें एक ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, जिसने पहचान लिया कि हमारे यहां मुलाजिम और नौकर की जरूरत तो है, लेकिन इससे अच्छा और नौकर और मुलाजिम नहीं हो सकता। वो पहचान गई और उसने वो सिफात जिक्र कर दी कि यह ताकतवर भी है और अमानतदार भी है। और फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बाजार में फरोख्त हो रहे थे, बिक रहे थे, वहां पर अजीज मिस्र ने आपको खरीदा और खरीद कर उसने जाकर अपनी अहलिया मोहतरमा को यह कहा था कि ये बड़े नफे का सौदा है, ये हमें नफा देगा या हम इसको आगे चलकर अपना बेटा बना लेंगे, आप इसका ख्याल रखिए। उसने भी बहुत जहानत फतानत के साथ ताना कि ये कोई आम शख्सियत नहीं है। और तीसरी जहानत और फतानत की मिसाल दी जाती है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की, कि जब आपका आखिरी वक़्त आया तो आपने अपनी खिलाफत और अपनी नियाबत के लिए हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जिंदगी में अपना नायब मुकर्रर कर दिया कि ये मेरे बाद खलीफा होंगे। अपनी जहानत और फतानत जो अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई थी, उसमें पहचान लिया इससे बढ़कर और कोई आदमी नहीं हो सकता जो उम्मत को लेकर आगे चलेगा। तो इसी तरह ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, उसको अल्लाह ताला ने वो जहानत और फतानत अता फरमाई थी कि वो पहचान गई कि ये आम शख्सियत नहीं है। आप मुलाजिम हो गए। काला, फरमाया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने, इन्नी उरीदु, बेशक मैं चाहता हूं, अन उनकी हाका,
कि मैं निकाह कर दूं आपके साथ। इहदब्नतैया, इन दोनों बेटियों में से एक का, हातैनी, इन दोनों, हातैनी इसमें इशारा है, इहदब्नतैया हातैनी, इन दोनों बेटियों में से एक के साथ आपका निकाह कर दूं। अला अन, इस शर्त पर, इस बात पर कि तअजुरनी, तू मेरी नौकरी करेगा, समानिया हिजज, 8 साल तक। फ़इन अतममत अशरन, अगर तू पूरे कर दे 10 साल, फ़मिन इंदिका, वो तेरी तरफ से होगा, वो इख्तियार है तुझे। 8 साल हमारा मुआहदा होगा, और अगर तू 10 साल पूरे कर देगा तो वो तेरी तरफ से होगा, तुझे इख्तियार होगा। वमा उरीदु, और मैं नहीं चाहता, अन अशुक्का अलैका, कि मैं तकलीफ में डालूं आपको, कि ये जो नौकर और मुलाजिम रख के मैं आपको तकलीफ में नहीं डालूंगा। आपकी जो ड्यूटी होगी आप बड़ी खुश उसलूबी के साथ एक घर के फर्द होकर आप उसको पूरा करते रहेंगे, परेशानी नहीं होगी। सतजिदुनी, अनकरीब पाओगे मुझे, इंशा अल्लाहु, अगर अल्लाह ने चाहा, मिनस सालिहीन, नेक बख्तों में से। तो यहां पर मुलाजिम और मालिक दोनों की शराइत पेश कर दी गई। मुलाजिम के लिए 2 चीजें होना जरूरी हैं, ताकतवर भी हो, काम करना जानता हो, काम के ऊपर मुकम्मल ताकत और उबूर हो, और दूसरी शर्त है कि अमानतदार भी हो। जब ये दोनों शर्तें पाई जाएंगी तो अब ये बंदा मुलाजमत के लिए सबसे बेहतर रहेगा। इसके बाद आगे जिक्र किया गया मालिक के बारे में कि मालिक के लिए क्या क्या शराइत हैं, कि मालिक बिला वजह अपने मुलाजिम को तकलीफ में ना डाले, जो उनकी ज़रूरत है उसी के मुताबिक उनका मुकम्मल ख्याल रखे, जो ड्यूटी है वो ही पूरी करवाए। अब ये बातें मुआहदा होने के बाद क़ाल ज़ालिका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ज़ालिका बैनी व बैनका, ये मेरे दरमियान और तेरे दरमियान एक मुआहदा हो गया। अय्यमल अजलैनी अजलैनी, अय्यमा जौन सी भी, अजलैनी दोनों मुद्दतें, 2 मुद्दतें पीछे थीं, एक है 8 साल की और एक है 10 साल की। दोनों मुद्दतों में से जौन सी मुद्दत भी कज़ईतु, मैं पूरी करूं, मेरी मर्जी होगी, आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। फला उद्वान अलैया, आप ज्यादती नहीं करेंगे मेरे ऊपर। उनका ठीक है। वल्लाहु अला मा नक़ूल वकील, और अल्लाह की ज़ात उस बात पर जो हमने बोले हैं वकील, गवाह है। अल्लाह हमारा गवाह है कि हमने जो मुआहदा कर लिया इसके ऊपर, फ़रीक़ैन के ऊपर, इसके ऊपर अल्लाह की ज़ात गवाह है कि अल्लाह को मालूम है कि इन्होंने क्या मुआहदा किया, इसलिए अल्लाह ताला हमें इस मुआहदे के ऊपर पूरा उतरने की तौफीक भी अता फरमाएगा। तो ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कि आप मदियन तशरीफ़ ले गए और आपने 10 साल वहाँ क़याम फरमाया। 10 साल पूरे होने के बाद अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस फिर तशरीफ़ ले आए मुल्क मिस्र। उसका तज़किरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के सबक में आएगा। अल्लाह ताला हमें कुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।